Hello students, once again you are most welcome. This is a last video for this chapter for the from the diary of Anne Frank. You will get here 20 MCQ questions in this video that will be very beneficial for you. Let's see one by one. Why was writing in a diary a strange experience for Anne? The first question is, why was writing a diary a strange experience for Anne? Your option is, she had never written anything before. Second number, she didn't know how to write. Third is, neither she nor anyone else would be interested in it later. And D, both A and C. You have to check which option is correct here. Which option is correct here? तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मीन्स इसके पहले वो कभी कुछ लिखी नहीं थी. और फिर शी डिडंट नो हाउ टू राइट. ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी इज करेक्ट है. ओके, नाउ नंबर 2 यू सी, हाउ वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी? हाउ वुड एन allowed to read her diary? Let's see. Her sister, her friend, a real friend, no one. Who would Anne allow to read her diary? Okay, तो स्टोरी में उसने अपने एक रियल फ्रेंड की बात यहाँ पे उसने किया हुआ है. उसी रियल फ्रेंड को उसने अलाउ किया था स्टोरी को रीड करने के लिए. सो सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर स्टूडेंट्स. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. नाउ नंबर 3, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? क्यों एन एक डायरी रखना चाहती है? ऑप्शन आपके पास सामने 4 ऑप्शंस हैं. शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, शी लव्स टू राइट, शी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, शी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट. विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स? क्यों एन एक डायरी रखना चाहती है? तो आई होप क्योंकि आप पढ़े हैं, एन हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, शी also wants to share her feeling opinion, but there was no friend her. So option number 3, A for apple is correct answer here. Now let's see number 4, what did she name her diary? What did she name her diary? What did she name her diary? अपनी डायरी को उसने नाम क्या दिया? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे. उसने अपनी डायरी का नाम क्या दिया था? किट्टी. ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, ऑप्शन नंबर सी. उसने अपनी डायरी का नाम क्या दिया था? किट्टी. किट्टी इज करेक्ट ऑप्शन हियर. ओके, नाउ नंबर 5, व्हाई डज शी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी? क्यों उसने अपनी डायरी में अपने फैमिली के बारे में बहुत ही ब्रीफ स्केच दिया है? नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी लव डव राइटिंग. टू इंट्रोड्यूस किट्टी टू हर फैमिली, शी वुड फॉरगेट फैक्ट्स अबाउट हर फैमिली. एंड लास्ट ऑप्शन इज, शी लाइक टॉकिंग अबाउट हर फैमिली. मीन्स हियर आर 4 ऑप्शन फॉर यू एंड यू हैव टू चेक विच ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट हियर. तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑप्शन नंबर A, no one would understand it. No one would understand it if she dove right in. This is the correct answer here.
Option number A for apple is correct answer here. Now let's see. Number 6. Which subject was she not sure of passing? Which subject was she not sure of passing? Okay. Number 6. So she was not sure of passing math, science, English, all of the above. You know that she was very weak in math. So it's true that option number A, option number A, math is correct option here. Math is correct option here. Now let's see next. Number 7. Why was मिस्टर किसिंग annoyed with her? क्यों से मिस्टर किसिंग जो मैथ के टीचर थे क्यों नाराज थे? ओके, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से क्यों नाराज थे। इसलिए नाराज थे मिस्टर किसिंग यहाँ पे उससे क्योंकि she was not a good teacher, she was talkative, she was rude, all of the above. 7 नंबर का ऑप्शन she was talkative, she was talkative. ऑप्शन नंबर B for boy is correct option here. She was talkative, बहुत ही बातूनी थी। नंबर 8. Which topic was she to write an essay on as a part of her punishment? Which topic was she to write an essay on as a part of her punishment? Which topic? A chatterbox, an incorrigible chatterbox, quack, 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 said Mistress Chatterbox, all of the above. Okay, students, option number D. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन तीनों टॉपिक के ऊपर उन्होंने उसे लिखने के लिए दिया था। और चैटर बॉक्स पहला था एंड इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स था, और दूसरा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ये तीसरा था। नंबर 9. व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन? डायरी किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, इस चीज़ को आपको यहाँ जानना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सी होगा डच, सी फॉर कैट, डच, DUTCH, डच। डच लैंग्वेज में डायरी को लिखा गया था। नंबर 10. हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग talkative in the essay? How did Anne justify her being talkative in the essay? Number 10 का she discussed the subject topic in class. She discussed the subject topic in class. She discussed the subject topic in class. It is a habit. It is an inherent trait from her mother and you can't do much about it. The class is boring. तो जैसा उसने बताया भी था कि इनहेरिटेड है, उसके मदर से उसको प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ लेट्स सी नंबर 11. व्हाट शोज एन इज लव फॉर अ ग्रैंड मदर? यहाँ पे एन का ग्रैंड मदर के प्रति जो प्रेम है क्या दिखाता है? She still thinks about her, she misses her, she let her birthday pass with little celebration. Okay. लिटिल सेलिब्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर 11 यहाँ पर जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 11 का डी नंबर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट हियर। नाउ नंबर 12. व्हाई डज एन थिंक शी वॉज लोनली? व्हाई डज एनी थिंक शी वॉज लोनली? क्यों उसे लगता है कि वो अकेली?
क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए स्टूडेंट्स, शी हैड नो फ्रेंड, शी हैड नो रियल फ्रेंड, शी वॉज ऑल एलोन, शी वॉज एन इंट्रोवर्ट। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर जो बी है, शी हैड नो रियल फ्रेंड, यही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। शी हैड नो रियल फ्रेंड। नंबर 13 पे आते हैं, वाई वॉज शी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड। सी अनेबल टू गेट, क्यों अनेबल है अपने पहले की फ्रेंड से एग्जिट होने के लिए, क्यों इतना क्लोज होने के लिए सी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड। नंबर 13, शी डोंट लाइक हर फ्रेंड आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, सी फॉर कैट करेक्ट आंसर, सी फॉर कैट करेक्ट आंसर, क्योंकि शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सन, उसको अपनी पर्सनल बातें कहने के लिए एक अच्छे फ्रेंड की ज़रूरत थी और सबसे शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने डायरी में अपनी बात लिखने का सोचा। व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास, हु इज मोर टॉकेटिव, हु वुड पास द क्लास, फुटबॉल मैचेज, बेसबॉल मैचेज। नंबर 14 आप पढ़ चुके हैं कि जो क्लास में बच्चे किस बात पे बेट कर रहे थे, कौन क्लास में पास होगा, यही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हियर। कौन पास होगा इसी बात पे, हु वुड पास द क्लास, दिस वाज द बेट इन द क्लास बाय द किड्स। ओके। नंबर 15, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे, लास्ट एसे में उसने अपने क्या लिखा, अ पोयम, अ जोक, अ पैराग्राफ, अ फनी पोयम। पढ़ चुके हैं आप कि लास्ट जो एसे था वो पोइटिक फॉर्म में, वर्स फॉर्म में उसने लिखा, एंड इट वाज वेरी फनी, अ फनी पोयम। ऑप्शन नंबर डी, अ फनी पोयम उसने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ नंबर 16, व्हेन वाज द डायरी गिवन टू व्हेन, एन को डायरी कब दिया गया था, एन को डायरी कब दिया गया था, तो एन को डायरी उसके 13th बर्थडे पर दिया गया था, 13th बर्थडे पर। 13 बर्थडे पर उसको डायरी दिया गया था, 13 बर्थडे पर। नाउ नंबर 17, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड, उसकी बुक जो है किस नाम से पब्लिश हुई। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक, एनी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो टॉपिक है ये तो बाद में आया, ये तो जो है ये बाद में आया, ये जिसको क्रॉस करते हैं। उस समय द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट है। उस समय डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से ही पब्लिश हुआ। नंबर 18 देखते हैं, वाई डिड शी नॉट वांट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट, एट फर्स्ट शी डिडंट वांट टू बी फॉर्मल, शी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, शी डिडंट लाइक द आइडिया, बोथ वन एंड। तो 18 नंबर का डी, 18 नंबर का डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, डी 18 का डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नाउ नंबर 19, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव, एन के कितने सिबलिंग्स थे, एन के कितने सिबलिंग्स थे, तो एन की एक ही सिबलिंग थी, उसकी सिस्टर, सिर्फ एक ही उसकी सिस्टर थी, दूसरा कोई नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ नंबर 20, व्हाट वाज एन फ्रैंक्स फुल नेम, एन फ्रैंक का पूरा नाम क्या है, एन फ्रैंक का पूरा नाम क्या है, तो एन फ्रैंक का पूरा नाम, स्टूडेंट्स आप ट्रिक कर लीजिए, एन फ्रैंक का जो पूरा नाम है, एनलीज मैरी फ्रैंक, एनलीज मैरी फ्रैंक इज द फुल नेम ऑफ एनी फ्रैंक्स,
Annalise Mary Frank, यानी ऑप्शन नंबर ए is correct here. Okay, students, I hope this is clear to all of you. Okay,